देयर आर 7 यूनिट्स, किसी किसी बुक्स में आपको 8 यूनिट्स भी मेंशन मिल सकती हैं। फर्स्ट यूनिट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। देयर आर 3 टॉपिक्स इन दिस यूनिट। शेयर्स एंड डिविडेंड, दिस टॉपिक वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम लास्ट 2 years, बट दिस ईयर इट इज इंक्लूडेड। उन टॉपिक्स को मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूं जो लास्ट ईयर एक्सक्लूड थे बट दिस ईयर इंक्लूड है। एल्जेब्रा की वेटेज है 35 मार्क्स और डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉपिक लीनियर इनइक्वेशन से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स 15 मार्क्स की यूनिट है। फर्स्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यू विल गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 15 MCQs कवर होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स for board examination 2024. First of all, we are talking about exam pattern. कैसा होगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स इन ईयर 2024? 100 marks of mathematics will be divided into 2 parts. 80 marks is external board examination paper and 20 marks internal assessment. 20 marks of internal assessment are given by your subject teacher based on pre-boards examination marks, unit test marks or project work given by your subject teacher. And 80 marks you will get on the performance of your board examination question paper. In your board examination question paper, there will be 2 sections, section A and section B. Section A will be compulsory section. All the question of this section you have to do compulsorily, and section B will be optional. You will get some options in this section. Section A will contain 3 questions. Question number 1, question number 2 and question number 3. Question number 1 will have 15 parts and these are based on MCQs. In this question, you have to attempt 15 MCQs based on 15 topics. Question number 2 and 3 will contain 3 parts. These all questions are compulsory. Section A is of 40 marks, section B is of 40 marks. Question number 1, 15 MCQs, each will carry 1 mark, means 15 marks for question 1. Question 2, part 1, 2, 3 all will be of 4 marks. Question number 3, first and second part will be of 4 marks and third will be 5 marks. According to this, these are 25 and 15, 40. Now come to the section B. There are 7 questions in section B and you have to attempt 4 out of 7 questions. 1, 2, 3 are covered in section A, then question number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are 7 questions and you have to attempt any 4. Each question will contain 3 parts. And if you are attempting question number 5, then you have to attempt all 3 parts of this question. Question number 7, then you will have to attempt all 3 parts of this question. According to this, you have to attempt 4 questions from this section. Each question will contain 10 marks. First part 3 marks, second part 3 marks and fourth part will contain 4 marks. According to this, 10 marks and 4 questions, then 40 marks. This will be your exam pattern. Now we are coming to the syllabus. You can download syllabus from CISE website. Open original website of Council. There are some fake websites. Link I will mention in description box. Then you can open syllabus from publication section. आइए एक बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही आप CISE की ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप की विंडो आपको देखने को मिलेगी और इसमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये डिफरेंट विंडोज मिलेंगी। इन डिफरेंट विंडोज में से आपको
लाइब्रेरी पब्लिकेशन वाला जो सेक्शन है इसको क्लिक करना है. देन इन दिस सेक्शन you have to select this section ICSC and in this section regulation and syllabus. Then from this section, in this section you will get regulations and syllabus for different years. We want syllabus for 2024, so click this syllabus. Then syllabus for 2024 for different subjects will be open. Select the subject. You are able to download the syllabus. Suppose mathematics. This is the syllabus. 51 is code. This is the syllabus for class 9th. आगे जब आप pages open करेंगे, then after 3 pages, at page number 4, you will get syllabus of class 10th. Now, important instruction regarding every subject is given on the syllabus. There will be one paper of 2.5 hour duration carrying 80 marks and internal assessment 20 marks. The paper will divide it into 2 sections. Section first 40 marks, section second 40 marks. Section first will consist of compulsory short questions. Second, candidates will be required to answer 4 out of 7 questions. This is the detailed syllabus of mathematics. There are 7 units. किसी बुक्स में आपको 8 यूनिट्स भी मेंशन मिल सकती है. अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ बुक्स में अलजेब्रा में ऐड ऑन की गई है, कुछ बुक्स में उसको डिफरेंट यूनिट दिया गया है. फर्स्ट यूनिट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स. देयर आर 3 टॉपिक्स इन दिस यूनिट. फर्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज. यू हैव टू स्टडी SGST, CGST and GST in this topic. Banking, very simple topic, just one formula आपको learn करना है and you will be able to solve the question. Third, shares and dividend. This topic was excluded from last 2 years, but this year it is included. उन topics को मैं green से underline कर रही हूँ जो last year exclude थे but this year include हैं. Now come to the next unit, second unit. It is the biggest unit of your syllabus. It covers many topics. First is linear inequation. Linear inequations को solve करना है, साथ ही उसको हमें number line पर represent करना है. I want to tell you at our channel, detailed explanation of each topic is available and Selena Concise Mathematics का detailed solution भी available है. Time to time आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल भी हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी. अगर सिलेबस में कोई भी चेंज होता है देन वी विल शेयर यू. इफ स्पेसिमेन पेपर्स आर रिलीज देन वी विल शेयर यू डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिमेन पेपर. लास्ट ईयर भी हमने शेयर किया था. साथ ही हमारे चैनल पर आपको रिवीजन होल सिलेबस भी मिलेगी और सैंपल पेपर्स भी टाइम टू टाइम हम डाउनलोड करते रहते हैं. लास्ट ईयर भी हमने 6 सैंपल पेपर्स डाउनलोड किए थे. उससे पहले कोरोना में जब एग्जाम पैटर्न बिल्कुल एक सडनली चेंज हो गया था तो भी हमने सैंपल पेपर्स रिलीज किए थे एंड स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे थे. और इस साल भी हम आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए रिवीजन वीडियो, सैंपल पेपर्स एंड अदर मटेरियल जो भी काउंसिल रिलीज करेगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे. अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. 10th क्लास के साथ साथ क्लास 9th, 11th और 12th का भी स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग मैथमेटिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है. चलिए, सेकेंड टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. इस टॉपिक में हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन. And we have to solve quadratic equation by factorization method or by formula, Sridharacharya formula. And you have to solve simple quadratic equation problems, means word problems. Next topic है ratio proportion. Ratio is excluded, proportion included है. Continued proportion हमें study करना है और साथ ही ये simple application इसकी इस साल syllabus में include की गई है. ये topic लास्ट ईयर इंक्लूड नहीं था. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. इस टॉपिक में वी हैव टू स्टडी 2 थ्योरम्स, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम. बहुत ही इजी टॉपिक है. नेक्स्ट मैट्रिसेस. मैट्रिसेस में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। एंड द नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म सम फाइंड आउट करना एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये हमें इस टॉपिक में सॉल्व करना है। जीपी इस साल इंक्लूड की गई है, लास्ट 2 ईयर से जीपी एक्सक्लूड थी, बट दिस ईयर इट इज इंक्लूडेड। सिंपल एप्लीकेशंस भी लास्ट ईयर एक्सक्लूड थी, बट दिस ईयर इट इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ बुक्स में आपको ये डिफरेंट यूनिट की तरह मेंशन मिलेगा और कुछ में आपको अलजेब्रा के साथ ही एड ऑन मिलेगा। इट कवर्स 3 टॉपिक्स। रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड यू विल गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रियोइड फाइंड आउट करेंगे इसमें हम ट्राइंगल का विद द हेल्प ऑफ दीज। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको डिफरेंट फॉर्म्स स्टडी करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन की, 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड कम टू द थर्ड यूनिट, ज्योमेट्री। इस टॉपिक में आपको सिमिलैरिटी वाला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के लिए कंडीशंस ऑफ ट्राइंगल एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस साल इंक्लूड है, लास्ट ईयर ये एक्सक्लूड था। और इस टॉपिक्स में से एरिया थ्योरम, ये भी इसी साल इंक्लूड की गई है, लास्ट 2 ईयर से ये भी एक्सक्लूड थी। एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स भी इस ईयर इंक्लूड किया गया। मींस पूरा टॉपिक सिमिलैरिटी का वी विल हैव टू कवर फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट टॉपिक लोसाई, इट इज इंक्लूडेड दिस ईयर। इसमें आपको डिफरेंट लोकस आपको स्टडी करने हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। प्रूफ्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इन थ्योरम्स के प्रूफ हमें नहीं करने हैं। नेक्स्ट इसमें इस यूनिट में है सर्कल्स। सर्कल्स में एंगल प्रॉपर्टीज, साइक्लिक प्रॉपर्टीज, देन टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है। एंड केयरफुली हमें रीड करनी है दिस लाइन, प्रूफ्स ऑफ द थ्योरम्स गिवन अबव आर टू बी टॉट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। मींस आपको थ्योरम्स का प्रूफ भी करना है। लास्ट ईयर सिलेबस में मेंशन था कि प्रूफ आपको नहीं करना है, लेकिन दिस ईयर इट इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट टेंजेंट्स इन सर्कल, सर्कम सर्कल का, हेक्सागन का हमें करना है। मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन और स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, एक तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, ये भी बहुत मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है और इजी यूनिट है एज कंपेयर टू अदर यूनिट्स। इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। मीन के लिए 3 मेथड्स हमको स्टडी करने हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कई बार क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है फाइंड मीन बाय शॉर्टकट मेथड और फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, सो वी विल स्टडी ऑल द 3 टॉपिक। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम को, इसकी हेल्प, इससे हम मोड फाइंड आउट करेंगे। और लेस देन ओजाइव कर्व हम ड्रॉ करेंगे, इसकी हेल्प से हम अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन फाइंड आउट करेंगे। लास्ट यूनिट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ कम टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन? चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके इंडेक्स में टॉपिक्स के अगेंस्ट आप इसके मार्क्स नोट कर लीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। फर्स्ट यूनिट commercial mathematics is of 10 marks. First topic GST 4 marks weightage, banking 3 marks and shares and dividend also 3 marks. Then this unit is of 10 marks. Second unit algebra, coordinate geometry को मैं अलग से आपके साथ इसमें मेंशन करूंगी। algebra की वेटेज है 35 मार्क्स और डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉपिक लीनियर इनइक्वेशन से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में से जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू विल गेट 3 मार्क्स क्वेश्चन।
एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में से आपको मिलेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। मींस टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ 7 मार्क्स। नेक्स्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन में से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 मार्क्स के ज्यादातर 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स में से भी आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैट्रिसेस में से भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट, एपीजीपी, इसमें से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। इन मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम एपी, देन 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम जीपी, एंड इफ 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम एपी, देन 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम जीपी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 14 मार्क्स की वेटेज है इसकी। फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन में से ज्यादातर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन में से 6 मार्क्स का। कॉम्बिनेशन में भी मिल सकता है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले के साथ ही आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन भी कंबाइंड हो सकता है। टोटल आपको इसमें से 9 मार्क्स का मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट है ज्योमेट्री, इसकी वेटेज है 20 मार्क्स की। सिमिलैरिटी में से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। लुसाई में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक सर्कल्स, इसमें से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज में से 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन में से भी आपको 3 और 4 मार्क्स, 3 मार्क्स का भी मिल सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिल सकता है। नेक्स्ट यूनिट मेंसुरेशन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपको मिलना है। सिलेंडर, कॉन और स्फेयर में से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ट्रिगोनोमेट्री में 2 टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री की टोटल वेटेज है 10 मार्क्स। 6 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में से कवर होंगे और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स 15 मार्क्स की यूनिट है। फर्स्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यू विल गेट 5 मार्क्स क्वेश्चन। एंड लेस देन ओजाइव से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ओजाइव ड्रॉ करना होगा और उससे आपको मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना होगा। हिस्टोग्राम ड्रॉ करके मोड फाइंड आउट करना, इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 15 एमसीक्यूज कवर होंगे, वो क्वेश्चंस जिस टॉपिक में से कवर होंगे उसमें 1 मार्क का डिफरेंस आ सकता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। अदरवाइज यही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगा आपके एग्जाम में। सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन या फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।